Good morning, everyone. I welcome you to this session on Excel. And I'm happy that on a Sunday, people have turned up to learn Excel. That shows that you have that and you are truly a professional who is wanting to learn something new. Now I'm going to share my screen and let's deep dive into some of the important Excel tools and tricks which can help you in saving time. So all the participants, I request everyone to reply me in the chat box if you can see my screen. Is the screen visible? Okay, good. So here we go. So I'll be sharing 30 tricks with you all on Excel, and we are going to start with number one trick. Some of the tricks you might already have known, and some will be new to you. But एक्सेल ऐसी चीज है जिसमें एक ही चीज को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. So maybe you know some skills, some tricks, but definitely today you are going to get something new from this session. So first trick of the session, first trick for the session: convert text into uppercase without formula. Now you will see you are seeing a data here. Let me zoom in a little bit so that you it is visible properly. तो आपके सामने एक डेटा है and you can see that the name is there, PAN number is there, Aadhaar number is there, mobile number is there, and email ID is there. Okay, this all data is fictitious, like all the numbers that I've changed so that there is no personal information which is being leaked. Okay, so this is just for training purpose. The data does not belong to the person. So a small disclaimer here. Okay, now हम जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे, if you see the name is in small caps, right? The PAN number is in small caps and the email ID is in large caps. ठीक है, हमें इसको properly ठीक करना है. सबसे पहला ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, that is how to convert your data or your text into uppercase, lowercase, and proper case. Uppercase without formula, I'm saying. So many of you watching this would be knowing that the formula to convert from small cap to large cap is small case to large case is uppercase. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज किए बिना कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे. तो इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, और थोड़ा सा एक्सेल में क्या होता है कि हम लोग को थोड़ी बहुत ट्रिक्स आनी चाहिए और थोड़ा सा मैनिपुलेशन आना चाहिए और हम इजीली काम कर सकते हैं. देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग द फॉन्ट. ठीक है, तो जैसे ही आप फॉन्ट ऑप्शन खोलेंगे यू विल गेट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट और यहाँ पे आपको एक एल्जेरियन फॉन्ट दिख रही है. ठीक है, ऑल्दो इट इज अ वेरी वियर्ड फॉन्ट. ठीक है, बट 1 मिनट में आपका डेटा जो है, लेस देन अ मिनट, योर डेटा इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल कैप्स विदाउट एनी फॉर्मूला. ठीक है, इससे बेटर आपको फॉन्ट मिल जाएगी. आई विल जस्ट शो यू अ बेटर फॉन्ट व्हिच कन्वर्ट्स योर स्मॉल केस इनटू लार्ज केस. ठीक है, और थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल डाउन, वी हैव टू स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट एंड yes, this is it, perpetua titling empty. So you just see that जो name था हमारा small cap में वो सब large cap में. Same thing I'm going to do with the PAN number and see I've not done anything. मैंने क्या किया है, यहाँ तो मैंने font change किया था, मुझे PAN number को भी caps में करना था. तो मुझे क्या करना होता कि वापस फॉन्ट पे जाता, वापस वही फॉन्ट सिलेक्ट करता, चेंज करता. बट इफ यू हैव टू रिपीट एनी कमांड इन एक्सेल, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट प्रेस F4 key. F4, you can note down. To repeat any command in Excel, you can press F4 key and your previous command will get repeated. ठीक है, तो हमने प्रीवियसली क्या किया, आई एम जस्ट शोइंग इट टू एवरीवन कि फॉन्ट आपको चेंज करना है और आपका जो स्मॉल केस है वो अपर केस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द फॉन्ट. एक फॉन्ट और मिली है मुझे, कॉपर लेट गैथोलिक लाइट. तो इससे आपका ये अपर केस में आ जाएगा. ठीक है, दिस इज वन ट्रिक. देन यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस इनटू स्मॉल केस. अब ये फॉन्ट वाली ट्रिक से नहीं होगा, इसके लिए यू हैव टू यूज फॉर्मूलाज. So now I'm showing you 3 formulas where you can change the size of the
the alphabets, ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हैं. I hope I'm audible. I hope my voice is coming properly. Can anyone reply in the chat box? So now I'm going to show you some formulas here. So one is, so I had already mentioned the formulas and I've hidden them. ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे किया था. तो हम क्या चाहते हैं, we want the first one in upper case, the second one in upper case and third one in lower case. ठीक है, तो पहला कॉलम जो है हमारा, इसमें नेम लिखा है वो हम प्रॉपर चाहिए. जो पैन नंबर है इसको मैं फिर से दोबारा से इसका फॉन्ट चेंज करके उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आता हूँ. ठीक है, वी वांट दिस इन अपर केस एंड email IDs we want in lower case. Now what you have to do is you just have to write proper and select the text that you want in proper and press enter. तो आप देखेंगे अनिल सिटी जो कैपिटल में लिखा हुआ आ रहा था वो अब हमारे को ए और एस कैपिटल आ रहा है, बाकी सब स्मॉल केस में है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा और आप एक ही कमांड बार बार यूज करना चाहते हैं, एक ही फंक्शन को कॉपी करना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. ठीक है, वैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ प्रॉपर. एंड देन यू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड यू प्रेस एंटर. दिस आई वांट टू अप्लाई टू एवरीवन. तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एंड देन यू कैन जस्ट ड्रैग इट डाउन एंड यू विल सी दैट द फॉर्मूला वर्क्स इन ऑल द सेल. ठीक है, तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, ड्रैग डाउन करना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यू वांट टू कन्वर्ट ऑल योर पैन नंबर्स इनटू अपर केस. तो करना क्या है, द फॉर्मूला इज upper. Beauty of Excel is that when you don't, if you don't remember or you don't want to type in the full spelling, आप कोई भी फॉर्मूला का फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स लिखें and press a tab key. Press a tab key. It will complete the entire formula and then select the text and then close the bracket and see your pan is appearing in capital. Again you have to just drag and drop. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना चाहते तो आपको सिर्फ पैन पे यहाँ पे कॉर्नर मोस्ट सेल पे जब आप आते हैं, ठीक, टू द राइट मोस्ट कॉर्नर, योर माउस आइकन चेंजेस टू अ नैरो प्लस साइन और वहां पे आपको डबल क्लिक करना है. एंड व्हेन यू डबल क्लिक यू विल सी दैट द पेन चेंजेस इन अपर केस. ठीक है, नाउ वी कम बैक टू, नाउ वी कम टू द ईमेल पार्ट. तो जो ईमेल आईडीज है वो मुझे स्मॉल केस में चाहिए. अब मैं यहाँ लिखूंगा lower and then you have to select the text and press enter and you will see that all the characters in large cap has now converted to small case. So that was the trick number 1 for the day, how to convert your text into uppercase. तो पहला मैंने आपको बताया कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. दूसरा, आप अपर, प्रॉपर एंड लोअर केस यूज कर सकते हैं. नाउ यू वांट दैट डेटा, दिस डेटा इन द टेबल. ये जो हमने सही किया है उसको टेबल में करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे इसको एंड यू विल सिंपली पेस्ट इट. बट इट डजंट वर्क बिकॉज देयर इज अ रेफरेंस. तो करना क्या है, बिकॉज सी क्या होता है, एक्सेल में छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज करने के लिए आपको मल्टीपल ट्रिक्स आनी चाहिए, मतलब मल्टीपल चीजें पता होनी चाहिए, तब आपका जो फॉर्मूला है या फंक्शन की है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है. तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, लेकिन ये सब क्या है, ये सब फॉर्मुलेज हैं. इफ यू कैन सी इन द फॉर्मूला बार, यू विल सी अ फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार हियर. ठीक है, फॉर्मूला बार में आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है. तो एक रेफरेंस है सेल का, जब तक उस सेल में अगर मैं कोई वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो नीचे आपको देखिए वैल्यू डिलीट होगी. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट कॉपी यूजिंग कंट्रोल सी एंड देन व्हेन यू आर पेस्टिंग तो आप राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पे जाएं और वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा. यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ वैल्यूज एंड प्रेस ओके. Paste special values, okay. So now you see that the values are getting
पेस्टेड। अब यहाँ से आप डिलीट भी कर देंगे तो भी वो वैल्यू रह रही है, बट हुआ क्या है कि आपको ये प्रॉपर में नहीं दिख रहा बिकॉज द फॉन्ट इज समथिंग डिफरेंट। फॉन्ट हमने कैप्स लॉक वाली सिलेक्ट करके इसको मैं कोई और फॉन्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट मी यूज अ बेटर फॉन्ट like this. Okay, so now you are properly, you have copied and pasted the data. Similarly what we'll do is यहाँ पे भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी किया आपने, राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे ऑप्शंस आता है पेस्ट वैल्यूज का, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यू विल गेट योर डेटा इन द टेबल। एंड सिमिलरली ऑल दीज यू हैव टू कॉपी again, right click and then right click and then paste। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल क्या करता है, जब भी आप कोई ईमेल आईडी एंटर करते हैं, दैट मींस @ एंड कोई ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे तो इट टेक्स यू टू योर जीमेल, और आप वहीं से डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सेकेंड ट्रिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, जस्ट शेयर अ थम्स अप इफ यू हैव गॉट ऑल लर्न दिस ट्रिक। एक मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप शेयर कर दिया, you can write yes and we can move to the next trick. See, that is the benefit of a live session, that you can interact with your audience. तो अगर आप यही YouTube पे देख रहे हैं या Facebook पे देख रहे हैं तो आपको वो मौका नहीं मिलेगा, but when you are interacting, when you are attending a live session, you can interact with the speaker and we can all take this session forward accordingly. So yes, I have got a yes, so we can move to the next one now. So we have to keep a track of the time also. चलिए, now in this Excel sheet I have inserted a hyperlink। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा it will take me to the next sheet, और जैसे ही मैं इंडेक्स पे क्लिक करूंगा this on this arrow it is taking me to the previous my index sheet। so this is again a trick that I'm going to share next। ठीक है, तो यहाँ पे ये hyperlink है और hyperlink से आप navigate कर सकते हैं when you have multiple sheets in your Excel workbook। now this trick is called as cell message। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ डेटा है और हम वो डेटा फिल करवाना चाहते हैं। हम ये एक्सेल शीट किसको शेयर कर रहे हैं कि आप अपना डेटा भर के दीजिए, बट हम उसके साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द सेल मैसेज which will prompt for will give a message to the user कि आपको ये कैसे यूज करना है, कैसे डेटा फिल करना है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरे नाम पे आलोक सिटी, इट इज सेइंग मी एंटर फुल नेम। ठीक है, दिस इज आलोक एसीटी इज द ऑथर नेम, और वो जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है एंटर फुल नेम, मतलब मुझे यहाँ पे अपना पूरा नाम एंटर करना है, तो आई कैन एंटर आलोक एसीटी। ठीक है, सेकंड में आप जैसे ही रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे भी आपको वो दिख रहा है, आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई मैसेज नहीं दिख रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे मैसेज इंसर्ट नहीं किए हैं। आई एम जस्ट जूमिंग इट लिटिल बिट सो दैट इट बिकम्स मोर विजिबल। ठीक है, चलिए, तो ये करना कैसे होता है, यहाँ पे हम दूसरा नाम डालते हैं अनिल सेठी। इस तरीके से आपके पास एक मैसेज आ रहा है, व्हेन यू गो क्लिक ऑन पैन नंबर इट इज गिविंग यू अ मैसेज एंटर 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पैन नंबर इन कैप्स। तो आप सामने वाले को बता रहे हो कि भैया अपना पैन नंबर 10 डिजिट वाला पैन नंबर चाहिए और हमारे को कैप्स में लिखना है। ठीक है, आई एम जस्ट एंटरिंग माय पैन नंबर एंड आई एम जस्ट मूविंग अहेड। यहाँ पे 12 डिजिट आधार नंबर डालने के लिए बोला है, यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर लिंक टू आधार। तो आप जब भी अपने डेटा एंट्री में कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस सेल मैसेज। अब करना कैसे है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पे हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और यू कैन प्रेस Ctrl+1। ठीक है, सॉरी, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूज डेटा वैलिडेशन टूल। तो आप डेटा पे जाएंगे और डेटा पे आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, और आप इस पे क्लिक करेंगे सो यू विल सी अ पॉपअप, अ डायलॉग बॉक्स कमिंग अप, और वहां पे आपको 3 टैब्स दिख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज टैब्स, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो शो इनपुट मैसेज व्हेन द सेल इज सिलेक्टेड, सो दिस शुड ऑलवेज बी ऑन टिक। ठीक है, नहीं तो वो हमेशा आपका वो मैसेज दिखाएगा। जब भी हम सेलेक्ट करेंगे उस सेल को तब आपको मैसेज दिखना चाहिए, राइट। सो यू सेलेक्ट दैट सेल
and then you can write the title, or you can leave the title also. I'm just writing it Alok, my name over here, Alok Singh, and I am inserting the same message that enter your complete name, your full name, and I press OK. Now you see that here, when you just select this cell, you get a message, enter your full name. यहाँ पे हमें क्या मैसेज देना है कि enter your 10-digit PAN number in caps. So what you are going to do is you have to use data validation. Now Excel को अगर effectively use करना है तो हमें shortcut keys आनी चाहिए. So in this session I'm going to teach you some shortcut keys also. So now you don't have to remember any shortcut. Generally होता क्या है कि इतने सारे shortcuts है तो आप याद रख ही नहीं सकते. तो एक ट्रिक है, आपको क्या करना है, Alt प्रेस करना है. When you press Alt and the next data tool, जितने भी आपके पास शॉर्टकट कीज के ऑप्शंस होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं. ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे आपने Alt H प्रेस करा तो you can see on my screen you are getting some alphabets with a black background. ये सब क्या है, ये सब शॉर्टकट कीज है. ठीक है, now I'm pressing Alt D because I want to go into the data tab. Alt D. ठीक है, somehow it is not working, I don't know. लेकिन Alt D पे आप प्रेस करेंगे तो आपको ये हाईलाइट हो जाएंगे इसके जितने भी ऑप्शंस हैं. ठीक है, Alt D V and V. Alt D V and V is a shortcut key to insert your data validation. Alt D V and V. Or you can directly select from here. हम लोग वैलिडेशन पे की बात कर रहे थे और हम डेटा वैलिडेट की बात कर रहे हैं. डेटा वैलिडेशन में आपने Alt D आपको दिख रहा है ऑलरेडी स्क्रीन पे. V I press. It is not coming up. हम लोग यहाँ से अभी यूज कर लेते हैं because we need to check this out. तो डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इनपुट मैसेज पे जाना है. यहाँ पे आपको टाइटल दे देना है मैसेज फॉर यूजर, और आपको क्या मैसेज देना है, एंटर योर 10-digit PAN नंबर इन कैप्स एंड यू प्रेस ओके. तो होगा क्या, जब भी हम इस सेल पे होंगे, जब भी यूजर इस सेल पे होगा तो उसको एक मैसेज जाएगा, एक प्रॉम्प्ट आएगा कि एंटर योर 10-digit नंबर इन कैप्स. सिमिलरली आधार में भी आप मैसेज डाल सकते हैं. मोबाइल नंबर में आपको एक और मैसेज डाल के दिखा देता हूँ. और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन यू गो टू डेटा वैलिडेशन इनपुट मैसेज एंड यू जस्ट राइट डाउन एंटर मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार एंड यू प्रेस ओके. ठीक है, नाउ यही चीज हमारे को सभी सेल में अप्लाई करनी है. तो क्या बार बार इतनी बार ये करना पड़ेगा? नो. व्हाट यू हैव टू डू इज you have to just copy and just paste it, and you will see all these cells have this message. So whenever you have to repeat any command in Excel, you have to just copy paste, or you can just drag it down, और ये आपको हर जगह ये हो जाएगा. So the second trick was cell message. Now we are moving to the next one. The next trick is cell alignment without merge. Now this is going to be amazing trick. ठीक है, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कुछ हेडिंग देनी है, टाइटल देना है, और हम चाहते हैं कि वो पूरे टेबल पे स्प्रेड हो जाए बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी. ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा करना चाहते हैं, सुंदर करना चाहते हैं हमारे एक्सेल को. तो हम क्या करते हैं कि हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं. दैट इज अ ट्रिक दैट यू ऑलरेडी नो. ठीक है, तो जो आपको आता है पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ, और जो आपको नहीं आता फिर मैं आपको वो बताऊंगा, so that you can understand the difference in the working. So if you need to merge these cells, अभी देखिए सब सेल सेपरेट हैं, इसको मर्ज करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, you select it down and then you can click on this
मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, जो मेरे को रेगुलरली यूज आती है वो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट की बना रखी है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्विक एक्सेस बार। ठीक है, टूल बार वहां पे मैंने डाल रखा है, तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये नहीं होगी इफ यू डू नॉट हैव अ क्विक एक्सेस टूल बार, बट यू कैन एनीवेज यूज द मर्ज एंड सेंटर। बट देर इज अ ड्रॉबैक इन मर्ज एंड सेंटर। होता क्या है कि सपोज आई वांट टू अप्लाई एनी फिल्टर, और मैं डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ कॉलम से, या मैं कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सपोज आई वांट टू सेलेक्ट दीज पैन एंड आधार। ठीक है, यहाँ शुरुआत से हम ये कुछ ही सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हेन यू ड्रैग, ट्राई टू ड्रैग, तो वो कंप्लीट मर्ज सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लेता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद द मर्ज कमांड। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सी दिस इज ऑल्सो मर्ज सेल। ठीक है, तो मैं इसको भी अनमर्ज कर देता हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन spread this data to the entire table without using the merge and center। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस डेटा को हम चाहते हैं कि अक्रॉस द टेबल स्प्रेड हो जाए। तो करना क्या है, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल वन। कंट्रोल वन, कंट्रोल वन इज अ फॉर्मेट सेल शॉर्टकट। तो फॉर्मेट सेल्स बहुत बार काम में आते हैं, और कंट्रोल वन इसके शॉर्टकट की है। इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे और आप प्रेस करेंगे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट वी हैव टू चेंज द अलाइनमेंट। तो एक्सेल में करना क्या है, जो टास्क आपको करनी है उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको सीखनी पड़ेगी, या वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उस फंक्शन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट in the text alignment center across selection, center across selection, and you click on OK. Now you see that my data is centrally aligned to my table without using the merge command। ठीक है, without using the merge feature। इसी इसको भी मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ इस कॉलम तक, इस सेल तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल वन प्रेस करेंगे आप, एंड देन यहाँ पे भी मर्ज का ऑप्शन है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट मर्ज ऑप्शन। टेक्स्ट अलाइनमेंट पे जाएंगे एंड देन यू सेलेक्ट सेंट्रल अक्रॉस सिलेक्शन, एंड देन यू प्रेस ओके, एंड सी दैट इज हाउ यू कैन डू दिस। यहीं पे मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, ये मैंने इंक्लूड नहीं करी थी, बट एक एज आप बोनस मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ कि सपोज हमने ये सेल एक आगे तक बढ़ा दिया है। यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड है वो डार्क येलो कलर आ रहा है, आई वांट टू हैव द सेम बैकग्राउंड हियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल हैंडल से सिलेक्ट करके एंड देन यू कैन सेलेक्ट। बट क्या होगा कि आपको शेड ढूंढना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि डार्क हो जाए, कई बार हो सकता है कि लाइट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैचिंग स्किल्स चाहिए जो गर्ल्स में होती है ना, बॉयज में नहीं है मान लो, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, आपको सिंपल सा एक ट्रिक यूज करनी है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, तो यहाँ पे एक आपको ब्रश जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करें, जो भी सेल का फॉर्मेट आपको कॉपी करना है उस सेल पे आपका कर्सर होना चाहिए, या आपका वो सेल सिलेक्टेड होना चाहिए, और आप उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर को सेलेक्ट कर लें, और फिर आप जाके वहां पर क्लिक कर दें जहाँ पे कि जिस सेल को भी आप चेंज करना चाहते हैं, और हुर्रे, सी दैट योर सेल हैज कलर हैज चेंज्ड विदाउट यूजिंग एनी, विदाउट हैविंग टू मैच द कलर। ठीक है, इन द कलर बार। चलिए, तो ये ट्रिक थी हमारी ट्रिक नंबर 3, जहां पे कि आप डेटा को सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं अक्रॉस द टेबल विदाउट यूजिंग द मर्ज एंड सेंटर। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पे मैं सिर्फ दो कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कर पा रहा हूँ, जो कि मैं मर्ज एंड सेंटर में नहीं कर पा रहा था। तो कोई भी ट्रिक को सीखने के लिए उसके बेनिफिट्स क्या है वो भी आपको आने चाहिए, तभी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरी ट्रिक्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ट्रिक, डिस्प्ले पिक्चर। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज रियली अमेजिंग। ये मेरी सबसे अच्छी ट्रिक है जो मैंने सीखी है, और आप लोगों के लिए भी नहीं होगी, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो आर यू ऑल रेडी टू लर्न दिस? कैन वी हैव अ यस इन द चैट बॉक्स so that I can know that people are listening to me and they are enjoying the session? So can we have a quick yes? Very good. Yes. ओके, नाउ डिस्प्ले पिक्चर ऑन सेल होवर। ये होवर का मतलब क्या है? होवर का मतलब होता है कि जैसे आप किसी सेल पे जाएं, और यहाँ पे जो आपको रेड दिख रहा है, ठीक है, इसके सामने देखिए, वेन एवर यू आर जस्ट
Keeping your mouse here, you are getting my picture, you are getting my PAN card, you are getting my Aadhaar card, right? तो ये सब कैसे हो पाया? ये सब एक्सेल के थ्रू हो सकता है। आपको ये तो पता ही होगा कि इंसर्ट कमेंट कैसे करते हैं, बट आई एम श्योर यू माइट नॉट बी नोइंग दिस ट्रिक बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो आप यहाँ पे क्या कैसे करना क्या है, हम देख लेते हैं कि होगा क्या कि जैसे ही आप अपने नाम पे क्लिक कर रहे हैं, आपकी फोटो आ रही है क्लाइंट की, आप उसके पेन पे क्लिक कर रहे हैं, उसका पेन नंबर दिख रहा है, कार्ड दिख रहा है और यहाँ पे आधार दिख रहा है। ठीक है, इसको करना कैसे है? बहुत ही सिंपल है। आप राइट क्लिक करें और आप आएंगे न्यू नोट पे। ध्यान रखिए, न्यू कमेंट नहीं करना है हमारे को न्यू नोट सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप नोट सेलेक्ट करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यहाँ पे एक नोट ओपन हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, नेम। और आप ये टाइप करेंगे तो सिर्फ ये नेम दिखेगा, बट हमारे को यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए? इमेज। वी वांट अ इमेज इन दिस, सो आई एम गोइंग टू एडिट दिस। एंड हाउ डू आई इंसर्ट अ इमेज? तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यू गो टू एडिट टेक्स्ट, ठीक है, और करना क्या है, राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट कमेंट पे जाना है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कमेंट पे जाना है एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेलेक्ट द color, color and line, and then you have to select the fill effects. थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ठीक है, fill effect पे जाएंगे, then you select the picture and then you can select the picture from your PC or your laptop, जो भी आप इस पे इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, so I'm just selecting any random picture because the objective is to show you। so ये मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट करी और यहाँ पे इंसर्ट कर दी और यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर दिया। सी व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है आपको। ठीक है, आई एम गोइंग टू जस्ट रिपीट दिस विद द पैन नंबर एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक। तो अगेन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ इमेज मैसेजेस। ठीक है, राइट क्लिक करें, गो टू एड न्यू नोट, राइट क्लिक ऑन द कॉर्नर्स, फॉर्मेट कमेंट, कलर्स एंड लाइंस यू हैव टू सेलेक्ट। वहां पे आपको जाना है फिल इफेक्ट में, fill effect say you have to go to the picture and you have to select any picture। okay, so here we are going to select a pen card, so here is the pen card and I select and I press ok and again ok and you see that you get the pen card। so hope you like the trick, if you like just share thumbs up in the chat box। हमारे फेसबुक व्यूअर्स भी अगर लाइव हैं तो यू कैन ऑल्सो शेयर योर लाइक्स ऑन द फेसबुक। चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट वन, स्मार्ट यूज ऑफ क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो इन एक्सेल मेनी टाइम्स वी हैव टू कॉपी एंड पेस्ट मल्टीपल डेटा एट द सेम टाइम। तो सपोज ये टेबल है, मुझे इसमें से 3 रो का डेटा कॉपी करना है और एक दूसरी जगह लोकेशन पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपने ये कॉपी करा और मुझे नीचे ही पेस्ट करना है, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगा। फिर मैंने ये कॉपी करा और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगा। फिर मैंने ये कॉपी करा, फिर मैं यहाँ जाके पेस्ट कर रहा हूँ। सो आई हैव टू रिपीट द टास्क 3 टाइम्स। इज देयर एनी वे जहाँ पे एक ही बार में ये काम हो जाए, मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े अपना टास्क? ठीक है, यस डेफिनेटली। सी एक्सेल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि ना हो। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर द वेज। आपको ढूंढना पड़ता है, सब कुछ मिलता है यहाँ। ठीक है, तो करेंगे क्या, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको पहले कॉपी कर लेना है जो भी डेटा आप कॉपी करना चाह रहे हैं। तो दिस इज द एंटायर रो दैट आई वांट टू कॉपी, मैंने कंट्रोल सी प्रेस करा। देन सेकंड I want to copy this, I'm pressing control C and third I want to copy this and I want to press control C। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल V दबाता हूँ ना, तो जो मेरा लास्ट सिलेक्शन है only that is getting pasted। जो मेरा लास्ट सिलेक्शन है वो ही पेस्ट हो रहा है। I wanted to paste the entire 3 selections that I did। जो मैंने 3 सिलेक्शंस कर रहे थे, 3 रो सेलेक्ट करी थी, वो तीनों पेस्ट नहीं हुई, आखिरी रो पेस्ट हो गई। तो क्या करें, तो हम यूज करेंगे क्लिपबोर्ड का यहाँ पर। ठीक है, एंड दैट इज द ट्रिक नंबर 5। तो पहला आप सिलेक्ट कर ले कॉपी दिस फर्स्ट रो दैट यू वांट टू कॉपी। आई एम अगेन सेलेक्टिंग इट, कॉपी कंट्रोल सी, अगेन सेलेक्टिंग दिस कंट्रोल सी, अगेन सेलेक्टिंग दिस कंट्रोल सी। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड लिखा हुआ दिखेगा. जस्ट फोकस ऑन द सेल पोजीशन, क्लिप बोर्ड, एंड यू हैव टू प्रेस अ डाउन एरो here, and you will see that it is showing you the items paste. You can paste, click on paste all. Okay, it is just giving me one option. Let me do it again. So control C, second, control C, and third control C. ठीक है. अब आप देखिए, in the clipboard you are having all these, and then you can paste all. तो ये देखिए, आपके पास 1, 3 और 5 तीनों रो एक साथ पेस्ट हो गई हैं. ठीक है. सो दैट इज द मैजिक ऑफ क्लिपबोर्ड व्हिच मेनी पीपल डोंट नो, और होपफुली आपने ये ट्रिक आज नहीं सीखी होगी. सो दैट इज हाउ यू कैन स्मार्टली यूज द clipboard to paste multiple data. That data can be pasted into different worksheet also, or to a new workbook also. Now we are moving ahead to trick number 6 and 7. I've combined this because these are interrelated. दोनों एक ही जैसे हैं, तो मैंने एक ही शीट पे दोनों समझा रहा हूँ. One is freeze rows and columns, how to freeze rows and columns, and second one is split view. Now freeze is something that you might have know, but यहाँ पे थोड़ा सा हम नया चीज सीखेंगे कि freeze कैसे करते हैं किसी भी रो या कॉलम को, और freeze करना क्यों है पहले ये समझते हैं. तो जब भी हम डेटा हमारे पास ज्यादा होता है, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं. ठीक है. दिस डेटा आई शो यू, इट इज अप टू 1000 रोज. 1000 रोज है इस डेटा के अंदर. तो जब भी हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो हेडिंग जो है हमारे टेबल की वो गायब हो रही है. ठीक है. सो आई डोंट नो कि जो कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर आर सो मेनी मल्टीपल कॉलम्स, कॉलम बी तक है हमारे पास. तो व्हाट डज द कॉलम रिप्रेजेंट, आई डोंट नो, एंड आई वांट टू नो इट. तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जब भी मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो ये जो हेडिंग है कॉलम नंबर A6, रो नंबर 6 में, ये हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए. ठीक है. आई एम जस्ट हाइलाइटिंग दिस एंड मेकिंग द कलर व्हाइट. यस. सो ये दिस ब्लू लाइन आई वांट टू रिमेन ऑन द टॉप व्हेनेवर आई स्क्रॉल डाउन. ठीक है. तो कैसे पॉसिबल है? तो बहुत ही आसान है. हम फ्रीज पैन यूज करेंगे. फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज हो जाना, रुक जाना, थम जाना. हम चाहते हैं कि ये लाइन यहीं थम जाए, ये रो यहीं थम जाए, वो नीचे ना जाए. तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रीज पैन. फ्रीज पैन मिलेगा कहाँ? मेरी स्क्रीन पे तो सामने ही दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के हो सकता है एक्सेल में नहीं हो. तो आप कहाँ जाएंगे? व्यू में. देखिए, कोई भी शॉर्टकट की को याद रखने के लिए आपको उसका फंक्शन, वो करता क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है. वहीं से आप कैच कर सकते हैं कि ये किस टैब में मुझे मिलेगा. सो वी गो टू द व्यू टैब, और व्यू में देखिए देयर आर डिफरेंट सेक्शंस. हियर यू गेट अ फ्रीज पैन्स, and then there are three options. One is freeze spans, one is freeze top row, then freeze top column. Now हम टॉप रो और टॉप कॉलम तब यूज कर सकते हैं जब हम पहली रो या पहले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं. लेकिन यहाँ पे हम जो रो नंबर फ्रीज कर रहे हैं वो है रो नंबर 6. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रीज पैन में? फ्रीज पैन आता होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ फ्रीज पैन का प्लेसमेंट होना चाहिए, वेयर यू हैव टू अप्लाई दैट फ्रीज पैन, दैट यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. तो जिस रो का फ्रीज करना चाहते हैं उसके नेक्स्ट रो में आप आएंगे और वहां पे आपको अप्लाई करना है फ्रीज पैन्स. नाउ सी, व्हेन आई स्क्रॉल डाउन, नाउ दिस रोज आर फ्रीज. ये 5-6 रो जो है ये सब फ्रीज हो गई हैं. और अब कितना भी डेटा आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लें, ठीक है, इवन आई गो टू द नेक्स्ट, द लास्ट डेटा इन माय रो, आई कैन सी द हेडिंग्स. सो दैट इज द ट्रिक नंबर 6, दैट इज फ्रीज रो. ठीक है. अभी हमने पार्शियली सीखा है. आगे हम जाते हैं फ्रीज कॉलम. कॉलम कैसे फ्रीज करें? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल कॉलम्स है, बहुत सारे कॉलम्स हैं, और हमारे को आगे का डेटा नहीं मिल रहा. जब हम आगे कॉलम स्क्रॉल करते हैं तो पीछे का डेटा छूट जाता है. तो क्या करते हैं, तो लोग क्या करते हैं जनरली, वो अपना जूम का साइज कम कर देते हैं. ठीक है. वो जूम इन कर लेते हैं. और देखिए, अब ऐसा हो गया कि ऐसा देखेंगे तो हमारे को चश्मा लगाना पड़ेगा, चार चार आंखें के साथ देखना पड़ेगा. बट मैं नहीं चाहता अपनी आईज को डिस्टर्ब करना. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द फ्रीज पैन, फ्रीज कॉलम. ठीक है. आप अगर जूम को करके भी करेंगे तो भी आपको सारा डेटा, सारे कॉलम एक साथ दिख जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. तो मैं क्या करता हूँ,
कि मुझे ये जो 4 कॉलम्स है 1 2 3 4, आई वांट दीज कॉलम्स टू बी देयर ऑलवेज, और उसके बाद का डेटा भले ही आगे बढ़ता रहे मुझे चलेगा, लेकिन ये 4 कॉलम मुझे फ्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस कॉलम को आपको फ्रीज करना है उसके नेक्स्ट कॉलम पे आप अपना सेल प्लेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और वहां पे आप यूज करेंगे फ्रीज पैन्स। ठीक है, तो हम व्यू में आ गए, व्यू में फ्रीज पैन्स पे आ गए, और आप वापस पहले मैं अनफ्रीज करूंगा, आई एम गोइंग टू फ्रीज इट अगेन। तो नाउ सी व्हाट हैपेंस, जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली तो मेरे रोज स्क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन मेरा रो नंबर 6 फ्रीज है। जब मैं कॉलम को स्क्रॉल करूंगा, व्हेन आई स्क्रॉल अक्रॉस द कॉलम, यू सी दैट द 4 कॉलम्स दैट यू आर डिसाइडेड, वो आपका मूव नहीं हो रहा है, बाकी के कॉलम ही क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो इसका हेल्प, इससे हेल्प क्या मिलती है कि जब भी हम एनालाइज करना चाहते हैं अपने डेटा को, तो हमारे को इजीली ये ट्रेस हो पाता है। ठीक है, इफ यू वांट टू सी द टोटल कॉस्ट for this particular lead, then you can check it out here. Okay, so that is the trick number 6 and 7, that is of freeze pan. Okay, so now we come to the next trick, और यहाँ पे ट्रिक का नाम है print tile and print selection. ठीक है, maybe I missed out on the title, but yes, you can see down, यहाँ पे जो sheet है उसका नाम लिखा है, यहाँ पे लिखा है print titles and print selection. अब देखिए होता क्या है कि whenever you are going to print any sheet which has multiple data, और वो मल्टीपल शीट्स में फ्लो हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल पी मैंने प्रेस किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो पेज है उसमें हेडिंग्स आ रही है, डब्ल्यू डिस्ट्रिक्ट लीड टैग सर्विसेज। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है, अभी तो मैंने ये फंक्शन कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये नहीं मिलेगा। जस्ट अ मिनट, just go, let me go to some other sheet. Yes, we go to this sheet and we press control P here. इस शीट का पेज डेटा 2 पेज में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। Let me just change this a little bit, and what we are going to learn is how to repeat the header, print the हेडर इन ईच शीट। मल्टीपल शीट्स के जब आप प्रिंट देते हैं तो आपकी हेडिंग गायब हो जाती है। ठीक है, हम पेज ब्रेक थोड़ा सा लेआउट में चेंज कर रहा हूँ इसका, और यस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिंट द डेटा। हम इसको 2 पेज में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज द डेटा दैट वी हैव। ठीक है, और हम कंट्रोल पी दबाते हैं, तो आप देखें कि ओके, नाउ द डेटा इज गोइंग इनटू डिफरेंट पेजेस। ठीक है, अब आप देखेंगे कंट्रोल पी आपने प्रेस करा, okay, control P you press, and you will see that in the first page your headings are visible. When you go to the second page, these headings are not visible. ये जो date, invoice number, customer name, sales, CDST, ये सब जो दिख रहा था, ये मुझे पेज 2 पे नहीं दिख रहा है। I want it to appear in page 2 as well. पेज 2 भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो headings आए जो मेरे पेज 1 पे है। How we can do that? आइए देखते हैं। So what you have to do is, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी हेडिंग्स है वो रिपीट हो, जब भी आप प्रिंट दें तो आपकी हेडिंग्स रिपीट हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप डेटा पे जाएंगे। ठीक है, और डेटा पे आपको मिलेगा जो डेटा आप रिपीट करना चाहते हैं, राइट।
तो यहीं पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। सॉरी, डोंट हैव टू गो टू डेटा, आपको व्यू में आना पड़ेगा। और ओके, सो यू हैव टू गो टू द होम टैब, और एक आपको पेज सेटअप पे जाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग एट द सेम टाइम। तो थोड़ा सा एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड लेट मी लोकेट वेयर इज पेज सेटअप। और आप पेज लेआउट पे जाएंगे और वहां पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना ये कर पाएंगे। यस, इन द व्यू मेन्यू यू गेट पेज लेआउट, ठीक है। तो पेज लेआउट पे आप अपना प्रिंट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं। तो पेज लेआउट पे आप जाएंगे एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शंस में कि आप कौन सी रो चेंज करना चाहते हैं। पेज लेआउट पे आप क्लिक करें और यू गो टू द व्यू ऑप्शन एंड यू गो टू द पेज लेआउट, और यहीं पे आपको, यहाँ पे आप हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हेडर जब आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका हेडर जो है, सपोज दिस इज द सेल्स डेटा, तो ये सेल्स डेटा आपका हर शीट पे प्रिंट होके आएगा, ठीक है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर वो ये है कि हम जो हेडिंग है, ये रो है, उसको हम रिपीट करना चाहते हैं। तो आप प्रिंट टाइटल्स पे जाएंगे, सो यू गो टू द प्रिंट टाइटल इन द प्रिंट पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट के ऑप्शन में आपको प्रिंट टाइटल जाए दिखेगा, यहाँ पे आपको ये दिखेगा रोज टू रिपीट एट द टॉप, कौन सी ऐसी रो है जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यू सेलेक्ट दैट रो, सो आई सेलेक्ट दिस रो, आपको इस पे आना है, सिलेक्ट करें एंड ओके प्रेस कर दो, ठीक है। नाउ आई एम अगेन गोइंग टू द प्रिंट लेआउट, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं हम और आप देखेंगे सेल्स डेटा जो पहले लिखा हुआ नहीं आ रहा था, वो अब लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है हमें। और सेकंड पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको ये जो हेडिंग है, डेटा, इनवॉइस नंबर, ये सब भी अब नजर आ रही है, जो पहले नजर नहीं आ रही थी। तो याद रखिएगा कि ये जो चेंजेस हमने किए हैं वो कहाँ से हुए हैं, वो पेज लेआउट से हुए हैं। पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स पे आपको जाना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द रो which you want to get printed on each page. So that was trick number 8, ठीक है। प्रिंट टाइटल्स, ठीक है। अभी हम लोग बात जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हमने ये फ्री स्पैन्स मैंने आपको सिखाए थे, उसके साथ में हमने आपको प्रिंट जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी मैंने बता दी। एक ट्रिक जो इसके साथ पे एसोसिएटेड है वो है स्प्लिट व्यू। नाउ व्हाट इज दैट स्प्लिट व्यू? इसमें क्या होता है कि सपोज हो क्या रहा है कि मैं जो शीट में डेटा है, मैं इसके साथ में चाहता हूँ कि मुझे लास्ट जो रो है मेरी शीट की, यहाँ पे मैं एक टोटल इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट इंसर्टिंग अ टोटल हियर, ऑल्ट इज इक्वल्स टू इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टोटल, ठीक है। और मैं यहाँ पर लेबर पार्ट्स फीस पे भी मैं टोटल लगा लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं टोटल इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ आई वांट दिस टोटल टू बी देयर, ये टोटल मुझे दिखनी चाहिए हर वक्त, ठीक है। अब मैंने फ्रीज स्पैन्स किए तो ये तो रो फ्रीज हो गई, लेकिन ये जो टोटल है नीचे की वो मुझे नहीं दिख रही, मुझे ये भी चाहिए और ऊपर का डेटा भी चाहिए।
तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन वी कैन गो टू द व्यू, और व्यू में आपके पास एक ऑप्शन आता है स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट और फ्री स्पैन्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने स्प्लिट करा तो देखिए दो शीट्स के दो टुकड़े हो गए। ये जो मैं आपके सामने ये मूव कर रहा हूँ एक बार को, वो आपकी शीट को स्प्लिट कर रही है, तोड़ रही है ना। लेकिन हम रोज को नहीं तोड़ना चाहते हैं, हम सिर्फ कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं, और सॉरी रोज को स्प्लिट करना चाहते हैं, कॉलम को नहीं करना चाहते। तो हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल एंड में, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हैंडल को प्लेस करूँ। ठीक है, और मैं प्लेस करना चाहता हूँ बिल्कुल लास्ट रो में, लास्ट रो से पहले। यस, नाउ यू कैन सी, अब आप देखें कि जो हमारा हैंडल है, ये हमारी शीट का व्यू दो में स्प्लिट हो गया है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। इस रो के साथ में आपको टोटल भी दिख रहा है, ये लास्ट रो दिख रही है और इसके साथ में नीचे टोटल दिख रहा है। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं अपनी शीट को जब भी स्क्रॉल करूं तो ऊपर की शीट देखिए अलग से स्क्रॉल हो रही है और नीचे वाला पार्ट अलग से स्क्रॉल स्क्रॉल हो रहा है। तो आपकी शीट को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया है। ठीक है, सिर्फ व्यूइंग के लिए, सिर्फ आपकी व्यूइंग के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऊपर का डेटा नीचे की डेटा से कंपेयर करना चाहते हैं, तो फिर यू कैन यूज दिस ट्रिक ऑफ स्प्लिट सेल्स। आप इस पे वापस क्लिक करेंगे तो अगेन योर शीट विल कम बैक टू नॉर्मल, ये वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाएगी। ठीक है, सो दैट वाज ट्रिक नंबर 6 एंड 7, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स एंड स्प्लिट व्यू। प्रिंट टाइटल्स तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम प्रिंट सिलेक्शन पे आते हैं। ये शीट में बहुत सारा डेटा है, बट मैं कुछ सिलेक्टेड रोज और कॉलम से प्रिंट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट ओनली दिस टू गेट प्रिंटेड। तो मैं क्या करूंगा कि आपको जो भी एरिया प्रिंट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें, देन यू प्रेस कंट्रोल पी। अभी देखिए एंटायर शीट नजर आ रही है, मतलब मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रिंट में वही पार्ट चाहिए जो मैं जो मैंने सेलेक्ट किया है। तो सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट सिलेक्शन का, print selection. So when you select that print selection, it will only print that part of the workbook, worksheet which you have selected. तो ये ध्यान रखें कि जब भी हमको कोई selected data ही print करना है तो हम print selection use कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हाइड डेटा की ओर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब लोग ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। और आई होप माई स्पीड इज नॉट वेरी फास्ट, बिकॉज हमने ये सोचा था कि हम 30 ट्रिक्स शेयर करेंगे 30 मिनट्स में, बट ऑलमोस्ट 1 आवर हैज पास्ट और अभी हमारे 10 ही ट्रिक हुए हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू रश नहीं करना चाहता। तो आई होप माई स्पीड इज ओके। कैन यू जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, इज इट गोइंग वेल? I hope this speed is fine with you all. Can anyone reply in the chat box? I can do fast also, I can go slow also. So I need your suggestions, I need your feedback so that we can take the sessions accordingly. Thank you, sir. Thank you, Yatinder sir. Okay, now अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, we have to hide some data. See, this is all important data of your client or maybe in the company that you're working. काफी सारा डेटा ऐसा होता है जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, आप शेयर नहीं कर सकते। बट समटाइम्स यू हैव टू शेयर अ शीट wherein which contains some data which is confidential, which contains some data which you can share, which is not that confidential. तो हमको अगर ये डेटा किसी को शेयर करना है तो यहाँ पर क्लाइंट डेटा है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, नेम है, पैन नंबर है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी और पासवर्ड है। अब पासवर्ड इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, यू कैन नॉट शेयर दैट। तो इसको हाइड कैसे करें, किस तरीके से हाइड करें? तो जनरली लोग क्या करते हैं, ये फॉन्ट के कलर को चेंज कर देते हैं। लेट मी टेल यू, लेट मी एंटर सम डेटा ओवर हियर फर्स्ट। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ अजमेर ITR *123। ठीक है, अब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ इस सेल में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मैंने कुछ भी टाइप करा इस सेल में नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैंने इसको हाइड कर रखा है। अब मैंने ये कैसे किया,
मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो लोग करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, ताकि आप वो ना करें और वो करें जो कि एक्चुअली होना चाहिए। सपोज हम ये पासवर्ड को यहाँ कॉपी कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे डाला अजमेर ITR*123। अब एक सिंपल ट्रिक क्या है कि आप इसके कलर को व्हाइट कर दें, ठीक है, और देखो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट वे। किसी को भी पता पड़ेगा, वो यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया, देखिए 1 मिनट में नजर आ गया। यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर दो तो भी नजर नहीं आएगा। सो दैट इज द ट्रिक। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो 100% फुल प्रूफ हो। बट ये होता कैसे है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+1 आपको प्रेस करना है, ठीक है, और इट विल ओपन द फॉर्मेट सेल विंडो। और करना क्या है, कस्टम में जाना है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पार्ट है ना, ये किसी बहुत कम लोगों को आता है, जो एक्सेल में प्रो होते हैं उन्हीं को आता है ना, लेकिन हम लोग सीख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। बट एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए, जो आज लोगों में दिख रही है, जो संडे के दिन भी एक्सेल सीखने आए हैं। वेरी गुड। चलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं कि कैसे आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं। तो कस्टम्स में जाके आपको 3 सेमीकॉलन लगाने हैं, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन एंड सेमीकॉलन। 3 बार आपको सेमीकॉलन लिखना है कस्टम में। जर्नल की जगह पे आप उसको हटा के एंड 3 कॉलम्स आप रख दें और प्रेस एंटर एंड सी द मैजिक। देखिए ये जो हमने अजमेर आइडिया लिखा था वो गायब हो गया। इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ एंड सी दिस ट्रिक इज वर्किंग। जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ सब गायब हो रहा है। यहाँ पे तो गायब नहीं हो रहा, ये पूरे कॉलम पे हमने कर दिया। यहाँ आप टाइप करेंगे तो ये गायब नहीं होगा। अब वापस कैसे लाएं भाई, हमें ही पासवर्ड देखना है, किसी और को नहीं लिखना। तो हम क्या करें, हट कुछ नहीं करें सर, ये जो आपने लिखा है इसको हटा देना और एंटर मारें। सी योर डेटा इज बैक। तो ये जो पासवर्ड की ट्रिक है, आप ध्यान से यूज में लीजिएगा और नोट कर लें कि कोई भी डेटा अगर हाइड करना होता है, इस या आप किसी के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं। आजकल लोग प्रैंक में बिलीव करते हैं। तो आपको अगर डराना है या अपने बॉस से कोई बदला निकालना है, किसी ने डांट दिया आपको और आप चाहते हैं कि अरे यार ऐसे कैसे, तो आप कुछ मत करेंगे, सारा डेटा सेलेक्ट कर लें और कस्टम्स में जाएं, Ctrl+1 और 3 सेमीकॉलन लगा दें। वो आपको जिंदगी भर याद करेगा। देखिए ये डेटा चट से गायब हो गया है, फट से। और फिर बॉस को आपको बुलाना ही पड़ेगा कि भाई क्या किया, ये डेटा कहाँ गया। और आपको कुछ नहीं करना है, अगेन Ctrl+1 यू प्रेस एंड आप कस्टम्स में से ये हटा दें एंड बूम, हियर इज आवर डेटा। सो घबराए नहीं, कहीं नहीं जाता डेटा, डेटा वहीं रहता है, हम उसे ढूंढ के ला सकते हैं। सो दिस इज द ट्रिक नंबर 11, ठीक है, दैट वी आर डिस्कस्ड। Okay, fine. Now we'll go a little fast. We have got some comment. Terminate कर दे sir. Yes, boss will terminate you. No, don't use this trick at your own risk. Yes. चलिए. So boss should be smart enough to understand how the employee is working. कितना asset है आप employee. अगर Excel आपको इतना अच्छा आता है तो you are an asset for the organization. चलिए, मूव डेटा एंड ट्रांसपोज, दैट इज योर नेक्स्ट ट्रिक फॉर द डे। ठीक है, आई बी लिटिल फास्ट इन माय अप्रोच नाउ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम होगा नहीं, आप लोग के पास संडे है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्विकली हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कितने मैक्सिमम ट्रिक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट मे बी 30 मिनट्स, 35 मिनट्स विल टेक मोर, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा अगर एक्सेल सीखना है तो। चलिए अब हम क्या सिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो डेटा है, देखिए कोई भी एक्सेल की शीट जब हम देखते हैं तो वो फॉर्मेटेड नहीं होती, डेटा इधर उधर बिखरा होता है, तो हमें पसंद नहीं आता। अभी तक आप देख रहे थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, अरे कितना सुंदर डेटा है, कितना अच्छा सजाया है, और यहाँ आके देखा और दिख रहा है कि अरे ये क्या हो गया, ये डेटा यहाँ नहीं होना चाहिए, तो इस डेटा को कहीं यहाँ होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, कैसे करते हैं पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ इस पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+X दबाएंगे और यहाँ आके Ctrl+V दबा देंगे, ठीक है, और ये डेटा यहाँ से यहाँ आ गया। बट मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है जो आप करते आए हैं, आपको कुछ नया सीखने के लिए यू आर इन माय सेशन एंड आई एम हियर एंड आई एम डेलिबरेटिंग टू टीच समथिंग न्यू।
अगर वही कर रहे थे जो हम कर रहे थे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे ना। तो देखिए करना क्या है, आप ये टेबल सेलेक्ट कर लें, कोई जादू नहीं है लेकिन हाँ कुछ तो है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द एंटायर टेबल दैट यू वांट टू मूव। यू हैव टू होल्ड द शिफ्ट की को दबा के रखें, शिफ्ट की को, और आप इस टेबल के कॉर्नर पे जैसे ही ये आइकन चेंज हो रहा है आप इसको मूव करना चालू करें। ठीक है, यू हैव टू कीप होल्ड ऑफ द शिफ्ट की और इसको सेलेक्ट करना है टेबल को और इसको मूव करना है और छोड़ देना है जहां आप ले जाना चाहते हैं। और देखिए ये हमने बिना कट पेस्ट के इसको पेस्ट कर दिया। एक कॉलम और आगे आना चाहिए था डेटा, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ, शिफ्ट एंड देन मूव इट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, ये की ट्रिक नंबर 11, मूव डेटा विदाउट कट एंड पेस्ट। नाउ वी आर मूविंग टू ट्रिक नंबर 12, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। 12 नंबर की ट्रिक है। ठीक है, तो 12 नंबर ट्रिक, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो आपको डेटा जैसा दिख रहा है आप उसका शेप चेंज कर दे, जो रोज है वो कॉलम बन जाए, जो कॉलम है वो रो बन जाए, क्योंकि एक्सेल कुछ भी नहीं है। वो लता मंगेशकर जी का गाना था ना, जिंदगी कुछ भी नहीं, सिर्फ तेरी और मेरी कहानी है। ठीक है, प्यार का नगमा है। तो एक्सेल जो है ना वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोज और कॉलम्स की कहानी है। ठीक है, सो संडे है तो थोड़ा संडे फील में आ जाता है, और एक्सेल कुछ भी नहीं, सिर्फ रोज और कॉलम्स की कहानी। अब हम इस कहानी को चेंज कर रहे हैं, हम रो को कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को रो बना रहे हैं, और उसी को कहते हैं ट्रांसपोज। कैसे करेंगे, तो करना क्या है, कंट्रोल सी करना है, कॉपी करना है, और पेस्ट करते वक्त अगर आप सीधा से कंट्रोल वी दबाते हैं तो एज इट इज देखिए देखा डेटा पेस्ट हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं चाह रहे हैं, हम कैसे चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अलग तरीके से, अलग अंदाज में ये कॉलम रो बन जाए, रो कॉलम बन जाए। कैसे होगा जी, अभी देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू गो टू पेस्ट स्पेशल। और देखिए पेस्ट स्पेशल का जो डब्बा है ना, हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं यूज में लेना, लेकिन बहुत ही आसान है। जब आप पेज स्पेशल पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स एंड प्रेस ओके एंड सी द रिजल्ट। जो हमारी रोज थी, सीरियल नंबर, नेम, पैन नंबर, आधार, ये सब कॉलम बन गया है, कॉलम। और जो भी हमारी ये जो कॉलम में डेटा आ रहा था वो सब अब रो में आ रहा है। तो सारे नाम एक साथ, सारे पैन नंबर एक साथ, सारे आधार कार्ड के नंबर एक साथ। तो इसे कहते हैं ट्रिक नंबर 12, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज। अगर कोई भी ट्रिक आप मिस कर देते हैं तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी देयर ऑन फेसबुक एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बिकॉज समय की थोड़ी सी पाबंदी है तो वी आर गोइंग लिटिल फास्टर नाउ। Now, next trick is trick number 13, that is fill series of dates up to nth number. That means कि आपको एक शेड्यूलिंग बनानी है। ठीक है, बहुत सारे चार्टर्स ये देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे नॉर्मल लोग देख रहे हैं जो कि एक्सेल यूज करते हैं और एक्सेल में प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छा टूल है। तो आपको एक मंथली शेड्यूल बनाना है कि आप मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि भी जो डेट है ये आती जाए, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और फिर ढूंढते हैं, अरे कहाँ मार्च खत्म हो रहा है, कहाँ जनवरी खत्म हो रहा है, कहाँ फरवरी खत्म हो रहा है। ठीक है, और तुक्के लगाते हैं। मतलब क्या किया, वापस से बता देता हूँ एक बार। कुछ नए लोग भी आए हैं, आई एम हैप्पी पीपल आर ज्वाइनिंग, ऑल्दो नॉट ऑन टाइम बट स्टिल यू आर नेवर लेट। चलिए, तो हमने क्या करना है कि हमें जब ये डेट सीरीज बनानी है तो ये यहाँ पर एक फिल हैंडल होता है, इसको आपको सेलेक्ट करना है और आपको नीचे लेके जाना है। ठीक है, आप कहाँ तक खींचेंगे, जहां तक कि आपको डेट चाहिए। लेकिन ये कई बार खींचने में क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार कितना कितना कितना, तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो मुझे 3 महीने का डेटा डेट चाहिए था तो ये मैंने खींच लिया इसके वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, जो हम आज तक करता है हमें वो नहीं करना, हमें कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। कैसे करेंगे, तो हमने एक यहाँ पे काउंटर लगा दिया 1 and 2। ठीक है, अभी काउंटर कैसे होता है, देखिए 1 के बाद अगर आप स्प्लिट नेटवर्क को करेंगे तो 1 के बाद सीधा 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। 1 के बाद 2 लाने के लिए क्या करना होगा, तो ये भी एक ट्रिक है, ये भी आप सीख लें।
कि आप जाएंगे होम टैब में, ठीक है, और आपको मिलेगा यहाँ पर जस्ट अ मिनट, इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक फिल हैंडल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लोकेट इट। हाँ यहाँ फ्लैश फिल तो सबने सुना ही होगा, ठीक है, उसी के साथ में एक डेटा सीरीज का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी सीरीज को, ठीक है, और वो डेटा आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है, और कहाँ मिलेगा, होम टैब में आएंगे, होम टैब में आके और आप फॉर्मेट पे, ओके लेट मी शो यू द अदर वे, ठीक है, समटाइम्स वी गेट मिस आउट ऑन सम थिंग्स, ठीक है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आपको यहाँ पे एक सीरीज इंसर्ट करनी है। तो नॉर्मली अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स करना है तो 1+1 आप लगा के एंड देन यू कैन स्क्रॉल इट डाउन, और मुझे क्या करना है, मुझे 90 डेज की एक सीरीज बनानी है, ठीक है, 90 डेज। सो यहाँ 83 आए, अगेन आई जस्ट 90 तक मैं ले जाता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको भी स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि 90 तक ये आपकी डेट चली जाएगी, मतलब 31 मार्च तक हमारे को डेटा चाहिए था, हम उसको 31 मार्च तक ले आए हैं। तो ये जो डेटा था, ये ट्रिक नंबर थी 13, जहाँ पे आपको एक सीरीज फिल करनी होती है डेट की और nth नंबर तक। तो आप काउंटर करेंगे, इस काउंटर को आप बाद में क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डिलीट दिस एंटायर डेटा एंड यू हैव द डेट्स इन ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 14 की ओर, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका व्यू नॉर्मल कर देता हूँ, करेक्ट। अब देखिए इस शीट में और इस शीट में क्या डिफरेंस है, इफ एनीवन कैन पॉइंट आउट मी द डिफरेंस इन द चैट बॉक्स, if someone can find out the difference in the chat box, what is the difference between the previous sheet, ये वाली शीट और ये वाली शीट, जो आपको विजिबल टू द आई है, नॉर्मली दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये ग्रिड लाइंस नजर आ रही है, यहाँ आपको ये ग्रिड लाइंस नजर नहीं आ रही है। तो कैसे गायब करी हमने, कुछ भी नहीं, व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइंस पे से टिक हटा दें, ये ग्रिड लाइंस गायब हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा डेटा क्लीन दिखता है, नीट दिखता है, ठीक है। बट पॉइंट ये नहीं है, ट्रिक है हाईलाइट ब्लैंक सेल। जितने भी ब्लैंक सेल हमारे डेटा में है हम उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें नंबर्स हैं और कुछ नंबर्स एम्प्टी हैं, मैं इसमें से कुछ नंबर डिलीट भी कर देता हूँ आपको शो करने के लिए। और हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी जो भी नंबर हैं, जो भी एम्प्टी सेल्स आ रहे हैं, मैं सारे सेल्स को हाईलाइट कर लूँ बिकॉज आई वांट टू फिल द डेटा इन दो सेल्स। बट इतना बड़ा डेटा है कि खुद से ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए, क्या करना है, कंट्रोल ए सेलेक्ट द एंटायर डेटा, कंट्रोल 1, यू नीड टू प्रेस कंट्रोल 1, और आपको क्या करना है, फिर आपको ढूंढना है कौन सा डेटा, वो वाला डेटा जो कि ब्लैंक है, सारे ब्लैंक सेल हमारे को ढूंढने हैं। तो आप कहाँ जाएंगे, देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में जाना है, फिल में जाना है, और आपको ब्लैंक सेल ढूंढने हैं। You want to find all the blank cells in the entire table,
तो आपको करना क्या, अगेन यू हैव टू गो टू डेटा वैलिडेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉरी, रिव्यू, सॉरी, यू हैव टू गो टू द रिव्यू टैब, और यहाँ पे आपको ढूंढना है जो सेल उसमें आपके यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, वो वाला सेल हम ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे भी कोई भी डेटा नहीं है, ब्लैंक सेल वी वांट टू लोकेट फ्रॉम दिस एंटायर डेटा। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि आप कैसे करेंगे। नाउ सम आइडियाज आई कैन गेट फ्रॉम द पीपल, वो बोलेंगे कि यार फिल्टर लगा दो, और फिल्टर में आप क्या करो कि आप सेलेक्ट कर लो कि यहाँ पे भी आपको ब्लैंक सेल दिखे, तो ये सारे ब्लैंक सेल आ जाएंगे, लेकिन मेरा सेल ब्लैंक यहाँ पे भी है, अलग अलग कॉलम्स में मेरा ब्लैंक डेटा है, तो क्या मेरे को सब में फिल्टर लगाने पड़ेंगे उसके लिए, या अलग अलग रोज में अलग अलग कॉलम्स में डेटा ब्लैंक है जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो फिल्टर आई डोंट वांट टू यूज। नाउ व्हाट इज द अदर ऑप्शन, क्योंकि हम जब ये सीख जाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि डिलीट कैसे करना है उन सेल्स को, ठीक है, ब्लैंक सेल्स को डिलीट कैसे करना है ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई दोज सेल्स व्हिच आर ब्लैंक। Definitely, we are not going to use filter, but how we are going to identify those data which is blank. अभी मैंने फॉर्मेटिंग वगैरह सब हटा दी है, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्लैंक डेटा कहाँ से ढूंढा जाए। तो आप आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल पे आएंगे आप, ठीक है। और सेल रूल में आने के बाद आप यहाँ पे बता देंगे कि भैया वो वाला डेटा लिया है जो कि ब्लैंक है, ठीक है। सो oh yes, sorry, I was missing on it. Thanks Venkateshwar for giving me that clue. देखिए F5 आपको प्रेस करना है, आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन दिस। F5 यू हैव टू प्रेस एंड देन यू हैव टू गो टू स्पेशल। थैंक यू पीपल फॉर हेल्पिंग मी आउट। और यहाँ पे आप इस गो टू स्पेशल पे जाएंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट ब्लैंक, और जितने भी ब्लैंक सेल है वो सब हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो आपको F5 प्रेस करना था, अगेन यू हैव टू गो टू स्पेशल एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द ब्लैंक्स, और सारे ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद यू कैन हाईलाइट दोस, यू कैन फिल दोस। तो जहां पे भी आपका ब्लैंक डेटा था वो सारा सिलेक्ट हो गया है। F5 इज द की दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन डिलीट ब्लैंक सेल, तो जितने भी ब्लैंक सेल है वो आपको डिलीट करने हैं। अब जो भी डेटा मेरा ब्लैंक है उसे मुझे डिलीट करना है, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब डेटा ब्लैंक है और हमारे को उसको हाईलाइट करना हमने कर लिया, अब उसमें अगर कुछ फिल करना है, हाउ डू यू फिल द डेटा इन द ब्लैंक सेल एट वन गो। जितना भी आपके पास ब्लैंक सेल में है, आपको कुछ डेटा कॉमन मैसेज, कुछ डेटा आप डालना चाहते हैं उसमें, कैसे कर सकते हैं। तो अगेन यू नीड टू प्रेस ऑल्ट ए, यू हैव टू सेलेक्ट द एंटायर डेटा। F5 प्रेस करेंगे, गो टू स्पेशल, सिलेक्ट ब्लैंक, ठीक है। और जब ये ब्लैंक सिलेक्टेड है, आप किसी भी एक सेल में आप टाइप कर दें एरर, ठीक है। और उसके बाद आप कंट्रोल एंड एंटर प्रेस कर दें, कंट्रोल एंटर, एंड यू विल सी दैट ऑल द डेटा इज गेटिंग फिल्ड विथ एरर। जितने भी ब्लैंक सेल थे हमारे पास, वहां पे सब पे एरर लिखा हुआ आ गया है। सो दैट इज हाउ यू हाईलाइट द ब्लैंक सेल विथ F5 की। एंड डिलीट ब्लैंक सेल का जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर लगाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल इज की टू पुट फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर बाय कलर कर सकते हैं क्योंकि हमने अब कलर कर दिया है।
और देखिए जितने भी यहाँ पे भी आप फिल्टर बाय कलर कर दें, और ये सारे वो रोज हैं जो मुझे नहीं चाहिए। आई कैन सेलेक्ट ऑल दिस एंड द शॉर्टकट टू डिलीट इज कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपका सारा डेटा हट जाएगा, जो कि भी जिसमें भी ये थे कुछ रह गया है तो अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, यू कैन प्रोसेस वापस से वो आप कर सकते हैं। मे बी वी हैव नॉट सिलेक्टेड दिस, तो यहाँ पे फिल्टर बाय कलर एंड दिस एंड यू कैन डिलीट दीज रोज आल्सो, कंट्रोल माइनस। So that was trick number 14 and 15. We are almost halfway, 15 tricks हो गए हैं, ठीक है। सेकंड, फिल ब्लैंक सेल, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस ट्रिक में बता दिया था कि कैसे आप ब्लैंक सेल करेंगे। कंट्रोल आपको कंट्रोल ए करना है, F5 प्रेस करना है, F5 प्रेस करके यू हैव टू गो टू स्पेशल, स्पेशल में जाके यू हैव टू गो टू ब्लैंक, और जितने भी ब्लैंक सेल है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे ब्लैंक एंड यू प्रेस कंट्रोल एंटर एंड यू सी अ ब्लैंक इज रिटन एवरीवेयर, तो सब जगह ब्लैंक दिख रहा है। चलिए, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट ट्रिक, दैट इज इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर एवरी रो। तो आपको ये डेटा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक रो के बाद एक रो इंसर्ट करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो सिंपल ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस से आप एक रोल इंसर्ट कर सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू रिपीट द एंटायर कमांड। हम लोग इस सेशन को इसलिए अटेंड कर रहे हैं कि वी वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स व्हिच कैन हेल्प अस सेव टाइम, ठीक है। तो टाइम बचाने वाली ट्रिक्स यहाँ पे आपको मिल रही है सीखने को। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू विल राइट अ काउंटर, ठीक है, और आप 1 से लेके 10 तक ये सीरीज यहाँ पे लिखो, ठीक है, 1 and 2 एंड देन यू कैन फिल इट। ठीक है, 1 से 10 आपने लिख लिया। उसके बाद आप क्या करें, कॉपी करें इसको एंड देन पेस्ट इट। जितना भी डेटा है, सपोज 100 रो का डेटा है, तो 100 नंबर तक आप फील्ड स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, उस 100 को वापस आप रिपीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, यू हैव टू अप्लाई फिल्टर, ठीक है, और आपको उसको सॉर्ट कर देना डेटा, ठीक है, और आप करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करने में हुआ क्या कि 1 के नीचे 1 आ गया, 2 के नीचे 2 आ गया, वी आर गेटिंग द नंबर्स इन रिपीटेशन, ठीक है, एंड यू गेट द डेटा। अब आपको करना क्या है, यू कैन जस्ट डिलीट दिस कॉलम बिकॉज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, ये हमारे हेल्प के लिए था, उसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मेटिंग रह जाती है, उसके लिए हम यहाँ पे जाके क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेटा दैट यू आर गेटिंग टू इंसर्ट अ रो इन बिटवीन ईच। एक रो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, इंसर्ट होगी, ठीक है। सो दैट वाज ट्रिक नंबर 17। नाउ वी गो टू ट्रिक नंबर 18, दैट इज रिमूव डुप्लीकेट डेटा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे डेटा में बहुत सारे डेटा ऐसे हो जाते हैं जो कि डुप्लीकेट आ जाते हैं, एक ही डेटा बार बार रिपीट हो गया, कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गई, कोई शीट में एरर आ गया और आपका डेटा डुप्लीकेट रिपीट हो रहा है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डुप्लीकेट क्या है। तो आप देखेंगे इनवॉइस नंबर 1 से लेके 23 तक सीरीज में आ रहा है, फिर वापस 1 से लेके 23 रिपीट हो रहा है, फिर अगेन 1 से लेके 23 रिपीट हुआ है। सो दिस डेटा इज गेटिंग हैविंग डुप्लीकेट वैल्यू ट्वाइस, 2 बार डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स का एक ऑप्शन आता है, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आप डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में आपको डेटा टूल्स में ये मिलेगा, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको रिमूव डुप्लीकेट्स। डेटा टैब में डेटा टूल्स में रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आता है। टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट वन और मोर कॉलम्स दैट कंटेन डुप्लीकेट्स। तो मेरा सारे ही डेटा में सारे ही कॉलम में डुप्लीकेट डेटा है, मैंने सिलेक्ट कर लिया सारी। आप अनटिक भी कर सकते हैं कुछ अगर आपको नहीं चाहिए तो, और यहाँ पे आप प्रेस करेंगे ओके। तो एक मैसेज आया है 29 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 23 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो 49 वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज हट गई हैं, सिर्फ 23 जो हमारे पास यूनिक वैल्यूज थी वो ही रही, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट ट्रिक, दैट इज कॉपी वर्कशीट विदाउट फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसको हम स्किप करते हैं, भी थोड़ा सा आगे आते हैं, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ट्रिक से पहले मैं वो ले लेता हूँ बिकॉज वी आर हैविंग अ शॉर्ट ऑफ टाइम। ट्रिक नंबर 20, इंटरेस्ट इंसर्ट बल्क शीट इन वर्कबुक। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कई बार क्या होता है कि आपको आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर ये बोलता है कि मुझे मल्टीपल शीट्स चाहिए,
ठीक है, ये जो डेटा है मंथ आपको दिख रहा है जनवरी से लेके दिसंबर, और आपको ये ऑर्डर दिया गया है कि आप जनवरी से लेके दिसंबर तक की शीट्स बनाओ। अब आप क्या करेंगे, चालू हो जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट में आप ढूंढेंगे कि वर्कबुक कहाँ मिल रहा है, ठीक है, और आप इंसर्ट करना चाहते हैं वर्कबुक, एक नई शीट। तो इंसर्ट में जाके आप वर्कशीट इंसर्ट करेंगे, या नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में आप वर्कशीट ले लेंगे, ठीक है। आप कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे, आपके पास मल्टीपल शीट्स आ जाएंगे। बट अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव रीनेम ऑल दी शीट्स। तो ये सब क्यों करना है, ठीक है, वी डोंट वांट टू डू इट मैनुअली। एक छोटी सी ट्रिक के साथ आप ये काम इजीली एक ही बार में कर सकते हैं, एंड उसके लिए हम यूज में लेंगे पिवट टेबल्स का। So pivot table is a very important tool in Excel, which not only is used in analyzing the data, but it can use it otherwise also. तो यहाँ पर आपको ये चीजें मिल रही है एक्स्ट्रा, जो आपको हो सकता है कि आपको ना पता हो। आप क्या करेंगे, इस डेटा सिलेक्ट करते हैं, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और डेटा रेंज, तो एक डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास में, और वो पूछ रहा है सेलेक्ट अ टेबल और डेटा। तो हमने ये टेबल और रेंज सेलेक्ट कर लिए। चूज वेयर यू वांट द पिवट टू बी प्लेस्ड। सो आई वांट इट टू बी प्लेस्ड इन द एग्जिस्टिंग शीट, यहीं पर ही, ठीक है। तो ये मेरा पिवट टेबल आ गया है, और ये पिवट टेबल इंसर्ट हो गया है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस फील्ड में से कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसके ऑप्शंस में जाएंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस में मिलेगा डेटा। हम एक बार के लिए न्यू शीट कर लेते हैं, एंड आई इंसर्ट दिस इनटू अ न्यू शीट, ठीक है। और this table is not giving me the data. Let me just check out what is wrong. Just give me a moment.
I think we can move to the next trick because it is giving some errors. We'll come back to it later. हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं and let me cover some other trick and then we will come back to this pivot table one. So protect workbook. Now everyone is looking to protect the data in the workbook, okay, so that no one can tamper with the data, कोई change नहीं कर पाए. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? How you can protect your data that we are going to see in the next trick. That is your protect your workbook. Now when you have to protect your workbook, what you have to do is आप रिव्यू में जा सकते हैं, रिव्यू टैब में, and you will get this protect workbook. ठीक है, and you can protect your sheet also, you can protect the workbook also. पहले मैं आपको protect sheet बताया था. तो protect sheet में आप जब select करते हैं तो it gives you it prompts for a password to unprotect. This is already protected, so I'm just unprotecting it first. Okay, अब देखिए मैंने इसको अनप्रोटेक्ट कर लिया. अभी मैं इस शीट में कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ या मैं करना चाह रहा हूँ तो ये बोल रहा है द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट. टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर पासवर्ड. सो यू क्लिक ऑन अनप्रोटेक्ट शीट एंड यू एंटर द पासवर्ड एंड नाउ यू आर एबल टू डू एनीथिंग विद दिस शीट. ठीक है, आप उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं. तो करना क्या है, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट करना है, प्रोटेक्ट शीट पे पासवर्ड लगाना है. आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अगेन you enter password to confirm and now you see that you cannot type anything in this particular sheet. So whichever sheet you want to protect, you can protect with the protect sheet command. Similarly you can work on the workbook also. ये same command आपकी workbook में भी काम में आएगी. Next trick is to hide zero. तो अब इसमें क्या करना है कि this is small table which is having some formulas. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक सम फॉर्मूला लगा रखा है जहाँ पे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेल्स का टोटल है. अब यहाँ पे कुछ डेटा हमने एंटर नहीं कर रखा क्योंकि ये सम फॉर्मूला पूरे टेबल में लगा हुआ है, यहाँ तक भी लगा हुआ है, तो यू आर फाइंडिंग जीरोस. अब इट इज लुकिंग वेरी ऑड. यहाँ पे मैं कुछ नंबर अगर डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका टोटल मिल रहा है, बट यहाँ पे मैंने कोई नंबर नहीं डाला तो मुझे यहाँ पे इसका टोटल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है. आई डोंट वांट दिस टू शो दिस जीरो. तो क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी हाइड द जीरो बट विदाउट रिमूविंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला भी चाहते हैं कि रहे लेकिन जीरो हट जाए, तो कैसे कर सकते हैं, दैट इज अ ट्रिक आई एम गोइंग टू शो नेक्स्ट. दैट इज कंट्रोल 1 आप प्रेस करेंगे, देन यू हैव टू सेलेक्ट कस्टम. कस्टम में जहां जीरो लिखा हुआ आ रहा है उसके साथ में आप 3 सेमीकोलंस लगा दो. सेमीकोलंस आई हैड एक्सप्लेन टू यू बिफोर दैट इट हेल्प्स इन हाइडिंग द डेटा. जब भी आप सेमीकोलन डालते हैं कस्टम पे वो डेटा जो होता है वो सारा छुप जाता है, हाइड हो जाता है. तो हम जीरो के सामने सेमीकोलन रख रहे हैं और आप प्रेस कर रहे हैं ओके. नाउ यू सी your zeros disappear. ठीक है, बट हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ. इफ आई पुट सम वैल्यू ओवर हियर इट विल गिव मी द रिजल्ट, बट आई एम नॉट गेटिंग टू सी एनी जीरोस. ठीक है, बट जीरोस ऑलरेडी है वहां बिकॉज द फॉर्मूला इज देयर. सो अगेन इफ यू रिमूव these 3 semicolons you will see the zero again. So that was the next trick. Next trick is swap rows and column. That is trick number 23. ठीक है, स्वैप रोज एंड कॉलम. तो हमने ट्रांसपोज देखा था. ट्रांसपोज में क्या होता है कि आपकी टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. हम वो नहीं करना चाह रहे हैं. हम अपने डेटा में से कुछ रो और कॉलम को ऊपर नीचे आगे पीछे चेंज करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू वो सेल्स से पहले आ जाए, मतलब ये कॉलम जो है वो यहाँ आ जाए. अब मुझे ऐसा करना है तो मैन्युअली करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आप एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, इस कॉलम को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट करेंगे. बट आई डोंट वांट टू गो दिस लॉन्ग. मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता. तो आपको करना क्या है, यू सेलेक्ट दैट कॉलम विच यू वांट टू मूव और आप शिफ्ट की के साथ में उसको ले चलें उस जगह पे जहाँ पे आप उस कॉलम को रखना चाहते हैं. ठीक है, वापस से बताता हूँ. शिफ्ट की प्रेस करेंगे और आप इसको यहाँ ले आएंगे. ठीक है, एक ग्रीन लाइन आपको दिखेगी और आप छोड़ दें, ग्रीन बार दिखेगा, छोड़ दें, आपका डेटा यहाँ आ गया. अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा कॉपी भी हो और मूव भी हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक साथ प्रेस कर सकते. कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड देन ड्रैग दिस डेटा. तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट अभी एक साथ प्रेस कर रखा है एंड आई एम जस्ट मूविंग दिस डेटा. सो यहाँ पे भी इनवॉइस वैल्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है. सेम थिंग यू कैन डू विद द रो.
अब देखिए क्या हुआ है कि ये 10 to 14 जो है ये मेरा 9 के बाद 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ गया। तो आई वांट टू शिफ्ट दिस, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूंगा, दीज आर द 5 रोज दैट आई वांट टू मूव डाउन। तो मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस एंड ड्रॉप इट हियर। तो ये आपका डेटा अरेंज हो गया। तो दैट इज द ट्रिक नंबर 23, स्वैप रोज एंड कॉलम। नेक्स्ट आते हैं हम डेटा एंट्री यूजिंग फॉर्म। ठीक है, सो आई विल बी रेस्ट्रिक्टिंग दिस सेशन टू द नेक्स्ट 2 ट्रिक्स। 30 हम करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ टाइम वी आर डूइंग 25 टुडे। 5 आई विल बी डूइंग नेक्स्ट, आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो। ठीक है, 5 हम तब कर लेंगे। तो अभी हम लोग 25 कर रहे हैं, एंड इफ एवरीवन इज विलिंग देन वी कैन गो टू we can complete this to 30 also. So I need your feedback on the chat box. If you can spare some 15-20 minutes, we can complete all 30. चलिए अभी हम नेक्स्ट आते हैं डेटा एंट्री यूजिंग फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेडिंग चेंज नहीं हुई, इसको मैं कर देता हूँ अभी करेक्शन यहाँ पर। दिस इज ट्रिक नंबर 24 दैट वी आर डूइंग एट डेटा एंट्री यूजिंग फॉर्म इन एक्सेल। अब देखिए ये आपके पास कुछ डेटा है। अब जब हमको 6th रो एंटर करनी है तो हमारे को इस तरीके से एंटर करनी पड़ेगी। बट हम लोग की आदत है कि हम लोग को अगर कुछ फॉर्म में डेटा एंटर करना है तो थोड़ा फास्ट होता है और थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो जाता है। तो हाउ यू कैन इंसर्ट अ फॉर्म इन एक्सेल विदाउट यूजिंग वीबीए, बिकॉज हम बहुत टेक्निकल नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, हम बहुत सिंपल सिंपल चीजें सीख रहे हैं थोड़ा सा नए तरीके से, जिसको यूज में लेके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं एक्सेल में वर्किंग में। तो अब करना क्या है कि हमें इस डेटा को, इस टेबल को एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, लेट मी टीच यू दैट फर्स्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेवलपर टूल ऐड करना पड़ेगा अपने एक्सेल में। ठीक है, वो ऑलरेडी होता है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी इट इज देयर बट इट इज नॉट विजिबल, तो यू हैव टू ब्रिंग इट आउट। ठीक है, जैसे टैलेंट होता है ना, हमारे अंदर होता है लेकिन हमें दिखता नहीं, हमें बाहर लाना पड़ता है। सिमिलरली कुछ ऐसे ऐसी चीजें एक्सेल में जो ऑलरेडी है बट हमें बाहर लानी पड़ती है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू के ऑप्शंस एरिया में। ऑप्शन में आप जाएंगे और आप यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज रिबन पे। ये यू कैन गो टू द एडवांस सेक्शन ऑल्सो, ये कस्टमाइज रिबन पे ही जाएंगे आप। और यहाँ पे आपको पॉपुलर कमांड की जगह ऑल कमांड सेलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट ऑल कमांड्स इंस्टेड ऑफ पॉपुलर कमांड्स, और यू हैव टू सर्च फॉर फॉर्म। तो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, आप यहाँ पे जाके और फॉर्म सिलेक्ट कर लें, फॉर्म। ठीक है, एंड देन यू कैन इंसर्ट इट टू एनी ऑफ द एरिया दैट यू वांट। ठीक है, सपोज हम इसको डेटा में चाहते हैं तो आप डेटा को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप न्यू टैब कर लें। ठीक है, न्यू टैब में आप इसका नाम दे सकते हैं फॉर्म्स, and you press OK, and then you can add new group and you can rename them also form। ठीक है, और इसको हम एक आइकन के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं और देन यू प्रेस OK। नाउ यू सी दैट इन द टूल बार ये जो है ये आपका रिबन कहलाता है, दिस इज द रिबन। ठीक है, एंड रिबन में आप देखेंगे एक फॉर्म्स टैब नया इंसर्ट हो गया। ऑलरेडी एक फॉर्म था मेरे पास लेकिन मैंने ये आपको सिखाने के लिए नया फॉर्म इंसर्ट कर लिया, और इस पे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो सी देखिए होता क्या है कि इतना सा करने के बाद आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्म आ गया है। विनय, which trick you want me to repeat? Can you mention that in the chat box? What I have to repeat? So ये डेटा एंट्री का जो फॉर्म था ये 24, yes, I'm repeating it. तो डेटा एंट्री का जो फॉर्म है उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको अपने फाइल मेन्यू में जाना है, फाइल मेन्यू में ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है, कस्टमाइज रिबन पे जाके यू हैव टू गो टू द पॉपुलर ऑल कमांड्स, फ्रॉम पॉपुलर कमांड्स ऑल कमांड में आपको ढूंढना है फॉर्म। सो यू कैन जस्ट टाइप F एंड देन यू कैन स्क्रॉल डाउन, यू विल गेट द फॉर्म, और आप यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दें। आपके रिबन में एक फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आपको डेटा एंट्री का फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। हमने कोई कमांड्स या पे VBA वगैरह यूज नहीं किया। ठीक है, और सपोज 6th एंट्री मुझे करनी है
I'm just repeating my name here. मैं अपने नाम की एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर. तो आलोक सेठी, something as PAN number, something as Aadhaar number, something as mobile number, and this is email ID, and you press close. So see, this is entry number 6 that is appearing on your screen. ये यहाँ पे दिख गई है. एक और यूज है इस फॉर्म का, वो क्या है कि जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आप क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं. सपोज आई राइट आलोक हियर एंड आई प्रेस डाउन. तो ये जो आलोक का जो डेटा है ये सामने मेरी स्क्रीन पे मेरा डायलॉग बॉक्स में दिख रहा है. तो आप किसी को भी सर्च भी कर सकते हैं और आपके डायलॉग बॉक्स में दिख जाएगा. डेटा पीछे है लेकिन यहाँ पे आपको चीजें मिल रही है. सपोज यू वांट टू सर्च अनिल, आप अनिल लिख के एंटर करें, ठीक है. तो ये आपका आई थिंक प्रीवियस या नेक्स्ट पे चला गया है, ठीक है. बट आप क्राइटेरिया पे जाएं और आप यहाँ पे लिख दें अनिल एंड यू प्रेस एंटर, it will bring you back. ठीक है. तो this is a form trick number 24. Now we are coming to the 25th trick and that is locate file address. कई बार क्या होता है एक्सेल हम फाइल बनाते हैं, सेव कर देते हैं, लेकिन कहाँ सेव होती है भूल जाते हैं. और फिर जब उसको शेयर करने की बारी आती है, ईमेल में अटैचमेंट करना है, तो हम ढूंढते रहते हैं कि यार ये सेव कहाँ थी, सेव कहाँ थी. ठीक है. तो करते क्या, सेव एज पे जाते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं, सर्च मेन्यू में ढूंढते हैं, लेकिन एक्सेल खुद ही आपको बता देगा कि आपने फाइल कहाँ सेव कर रखी है. और उसके लिए आपको आनी चाहिए एक कमांड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज सेल. ठीक है. सेल में आप जब ओपन करेंगे तो सबसे पहला ही आ रहा है एड्रेस. ठीक है. और आप एड्रेस करें और एंटर कर दें. तो ये तो सेल का एड्रेस आ गया. हमें सेल का एड्रेस से क्या करना है, हमें पता है कि सेल का एड्रेस ये होता है. हमें तो फाइल का एड्रेस चाहिए, फाइल की लोकेशन चाहिए, फाइल कहाँ सेव है मेरे पूरे सिस्टम में. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल. और अब आप क्या करेंगे, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइल नेम के बारे में आपको चाहिए. फाइल नेम, जो फाइल है वो कहाँ सेव है बता दो भैया. और देखिए, सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे पड़ी है फाइल. और देख लेते हैं कि क्या ये सचमुच डेस्कटॉप पे ही है, क्या गूगल ने ये हमारे एक्सेल ने सही जवाब दिया है. तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड आई थिंक इट इज विजिबल ऑलरेडी. ठीक है. और हमारे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो फाइल है हमारी एक्सेल की, वो यहाँ है, एक्सेल प्रो ट्रिक्स. इट इज देयर ऑन माय डेस्कटॉप. So this is trick number 25. So I take a pause here. It has been a continuous session with you all. और एक मिनट के लिए I'm just doing a stop share. Yes, and I want to talk to my participant. Now from here we are already 2 hours you spent with me, and it was a wonderful time teaching these Excel tricks. So from here, can you spare some 10 minutes more and we can complete this 30 tricks, or we can take a break. We can just discuss this end this session, and in the next Sunday maybe I can come up with more tricks. Being with me, and we have an Excel group also where I share some tips with my members, with students. And definitely if you want to join that group, I am sharing the link of the group in the chat box, so people can join this, and you can update your knowledge for free. There is no charges for joining and for attending these sessions. That is, I'm doing voluntary for the community, the benefit of people, and that is always going to be free of cost for you all. So thank you for attending. Thank you for taking out time. I'm just sharing the link of the group, my WhatsApp group, in the chat box. You can join it. You can share it with your friends also, and all can get benefited by joining this. And thank you all for attending and having a patient listening. And definitely I'll come up with more tricks like this on Excel in the coming Sunday. So signing off. Thank you, and have a wonderful Sunday. Thank you.